त्रिपक्षीय बैठक के बाद आखिरकार बागडोगरा का तिरहाना चाय बागान खुल गया है। 108 दिनों के बाद आज से बागान खुलने से श्रमिकों में खुशी देखी जा रही है। याद हो कि बागडोगरा के तिरहाना चाय बागान 10 नवंबर को बोनस मुद्दे के कारण बंद कर दिया गया था। बागान प्रबंधन ने लॉकआउट का नोटिस लटकाकर बागान को बंद कर दिया था, जिसके बाद श्रमिकों ने बोनस की मांग को लेकर कई बार राजकीय सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन किया। बाद में 24 फरवरी को त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक के बाद आज से बागान खोल दिया गया है। आज बागान खुलने पर भी अधिकांश श्रमिक खुश नहीं हैं। आरोप है कि बागान खुलने के बाद भी 1 महीने के बाद बोनस और मजदूरी का भुगतान देने की बात है। ये 1 महीना कैसे चलेगा? वही 18% बोनस से श्रमिक खुश नहीं है। हम लोग का अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग उतना दिन काम किए हैं, वो पैसा भी अभी तक मालिक देगा कि नहीं देगा वो बात नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। वो हम लोग का विश्वास नहीं है, मालिक को विश्वास हम लोग का तोड़ दिया है। जब मजबूरी में हम लोग खटा है, वो पैसा तो हम लोग का लगेगा। वो हम लोग लोन में नहीं लेता तो हम लोग कैसा पेट चलाता। और बागान को बचा दिया। अभी मालिक बोल रहा है कि हम खोलेगा, लेकिन उसको हम नहीं जानेगा। वो तो हम लोग का अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम लोग का एकदम दिल टूट गया। उतना मेहनत किया हम लोग, तब नेता लोग भी साथ नहीं दिया हम लोग को। क्यों उल्टा बात लगा दिया? हम लोग को तो उस दिन डीएलसी में गया था, लेकिन डीएलसी में हम लोग मीटिंग के लिए गया था, कुछ सुनने के लिए, लेकिन वो लोग तो हम लोग को नहीं सुनाया। वो लोग खुद फैसला किया। जनता काम करता है, जनता को पता है बागान कैसा काम करना पड़ता है। वो लोग क्या जाने, वो लोग फैसला कर दिया। ये हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग को एकदम दिल टूट, पूरा दुख लगा है हम लोग को। इतना दिन लड़के हम लोग का कुछ फायदा नहीं। এর মধ্যে হয়েছে 24 তারিখ লেবার কমিশনার অফিসে একটা বৈঠক ছিল। তার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। ওখানে এইটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে কি আমাদের যেটা বকেয়া পয়সা ছিল, বোনাস ছিল, ফোরনাইটের পয়সা ছিল, ওইটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাও ওরা আমাদেরকে কিস্তি করে দেওয়া হচ্ছে। ওইটা আমাদের মার্চ মাসে দিবে। 24 তারিখ থেকে ওইদিকে রেগুলার আমাদেরকে মানে কিস্তি করে দিবে। আচ্ছা, তাও আমরা ওইটা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যেটা মেন কথা হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের এই যে 4 মাসে যেটা আমাদের বাগানটা বন্ধ ছিল, তখন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়ায় আমরা লোন নিয়ে, কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে আমরা বাগানটা উঠাইছি। কেন না উঠাইলে এটা তো আমাদের ক্ষতি। আমরা এইখানে 12 মাস আমরা কাজ করব। যখন পর্যন্ত আমরা মরব না তখন পর্যন্ত আমাদেরকে বাগানে কাজ করতে হবে। তো আমাদের চিন্তা ভাবনা করলাম কি আমার বাগান তো নষ্ট হয়ে গেলে আমরা সিজনে আমরা পাত্তি পাবো না। সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা নিজের দায়িত্ব নিয়ে আমরা সবাইকে জানানো হয়েছে, ডিএলসি, এডিএম, ডিএম, থানাতে, লেবার কমিশনার, আমাদের সব জায়গায় লেটার দিয়ে তারপরে আমরা এখানে কলম কাটানো যে কাজ ছিল ওইগুলো আমরা করছি। অফ সিজনের কাজগুলো আমরা করছি নিজের দায়িত্ব নিয়ে। কারো কাছ থেকে আমরা লোন নিয়ে আমরা কাজটা করছি। করার পরে এখন পাত্তি চলে আসে, মাস থেকে পাত্তি তুলবে। এইটা দেখলো মালিক, দেখার পরে ওনার চোখে লাগছে কি এখন তো পাত্তি চলে আসছে, কিন্তু যেই টাকা আমরা কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে আসছি ওই টাকাটা আমাদেরকে তো দিতেই হবে। তো মালিকের কাছে আমাদের এইটাই আছে কি ও যদি থাকতো তাও ওনার কাছ থেকে টাকা খরচা হইতো, বা এখন কারো কাছ থেকে আমরা টাকা নিয়ে আসছি আর আমরা কাজ করছি, এটাও তো ওনাকে দিতেই হবে। হ্যাঁ, আমাদের এই মেন উদ্দেশ্যে আছে। কেন কি ওনা তো আমাদেরকে ছাড়ি চলে গেছে, আমাদের খেতি আমাদেরকে করতে হবে। এখন সিজন চলে আসলে আমরা কি কাজ করতাম? শ্রমিকরা আমরা অত মানে যত খুশি হওয়ার দরকার ততটুকু আমরা খুশি নাই। এর মধ্যে আমাদের অনেক বাক্য টাকাগুলো আছে, আমাদের লেনদেন আছে, কিন্তু ওনারা বলছে কি এই যে আমাদের লেনদেন বাক্য টাকাগুলা লেনদেন আছে এইগুলা আমরা আস্তে আস্তে করে আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা আমরা চুক্তি করব। বলা হয়েছে ভারওয়ালি হয়েছে, কাগজপত্র এখনও দেওয়া হয় নাই, কোনো এগ্রিমেন্ট করা হয় নাই। ভারওয়ালি আমরা খুলে দিচ্ছি, কিন্তু ম্যানেজার বলছে কি ঠিক আছে আমরা সব আপনাদেরকে একটা যে এগ্রিমেন্টগুলো হয়েছে আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দেব বলে বলছে।
হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাগান খুললে ফিরবে, এটা তো আশা আছে। এখন আমাদের বাগান খুব সুন্দর হয়ে গেছে, এখন পাতি উঠে পাতি চলে আসছে, আমরা খুশি আছি। इस संबंध में बागान के सीनियर मैनेजर ने कहा कि इन लोगों की एक वेजेज बाकी थी फोर्टनाइट की और एक बोनस बाकी थी। बोनस में ऑलरेडी 6% इन लोगों को दिया हुआ था, रेस्ट ऑफ 12% इन लोग को देना है। तो कंपनी का हम लोग का स्टैंड था कि चलो भाई एक फाइनेंशियल क्रंच भी हो गया इतने दिनों, दोनों तरफ ही होता है, तो हम लोगों का ये हुआ कि चलो इसको 4 किस्त में दिया जाए। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट और जो ऑपरेटिंग सेंट्रल यूनियन है वो लोग उस चीज़ पे राज़ी नहीं हुए, तो फिर लास्ट में निर्णय हुआ कि 2 स्प्लिट में दिया जाएगा। तो 2 स्प्लिट में हम लोगों ने उसको कर दिया। एक दे रहे हैं फगवा के पहले, माने ये भी नहीं कि इमीडिएट कल, बिफोर फगवा दे विल गेट 1 पार्ट और 1 पार्ट 31/7 के पहले। ठीक है, तो इस चीज़ में आज से बागान खुलने का बात हुआ। बागान तो खुलने से अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा ही है, क्योंकि ये एक बागान खाली वर्कर लोग के लिए ही नहीं है, एक पूरी एरिया इससे डिस्टर्ब हो जाती है, इकोनॉमी बिगड़ जाती है कि नहीं। तो ये सुचारू रूप से चलना अच्छी बात ही है। फिर इन लोगों ने लॉकआउट पीरियड में बोलता हम लोगों ने खर्चा किया है, उसका कागजात भी मेरे को दिया है 40-42 लाख रुपए का। तो उसके लिए वो क्या क्यों दिया है मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ये कहा है कि ठीक है ये हायर मैनेजमेंट की बात है, आपका कागज़ हम रिसीव करते हैं, क्या होगा नहीं होगा उसकी कोई हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट को भी हम प्रेस करेंगे कि भाई वो क्या बोलता है इस विषय में, किसके परमिशन से हुआ क्या नहीं हुआ, है कि नहीं। और अपना हायर मैनेजमेंट से भी बात करेंगे हम इसमें। सोचना ये तो दुखद घटना है, दुखद के बारे में जितना सोचेंगे उतना दुखी होते जाएंगे। तो दुख के बारे में नहीं सोच के आगे की सोचना चाहिए कि आगे हम लोगों को कैसे क्या करना है। अब बार बार दुख को लेके ही पड़े रहेंगे तो फिर आगे का विचार कुछ होगा भी नहीं। देखिए हम लोग तो पॉजिटिव आशा लेके चलते हैं, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सोच हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव होने से ही काम होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। तो अपना पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हम यदि सोचते रह जाएंगे तो आगे का प्लानिंग कैसे होगा। जो पिछली गलती हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब क्यों हो गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। श्रमिक यूनियन के सदस्यों ने कहा कि एक्चुअली बागान तो खुला लेकिन कोई भी मजदूर खुशी नहीं है, क्योंकि हम लोग का लड़ाई जो था, हम लोग जो 4 महीना पहले जो लड़ाई किए थे 18% 19% का जो लड़ाई था और 2 किस्ती 3 किस्ती में देने के लिए मैनेजर और मालिक बोला था, लेकिन वो चीज़ हम लोग नहीं माने। उसके लिए आंदोलन हुआ बहुत ज़ोरदार। उसके बाद में अभी जब बागान खुली तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ जहाँ पर हम लोग को बैठाया ही नहीं गया था। एक्चुअली हम लोग लेबर कमिश्नर के पास गए थे, हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन हम लोग को ऊपर उठने नहीं दिया। हम लोग का नेता लोग, हम लोग का मैनेजमेंट और लेबर कमिश्नर ग्रुप मीटिंग करके हम लोग के ऊपर में ये जो एग्रीमेंट हुआ थोपा गया है। इससे सारा जनता नाखुश है। आप देख भी सकते हैं, औरत लोग से पूछ भी सकते हैं कि वो लोग खुशी नहीं है। अगर एक बार में देता ये, जैसे हम लोग डिमांड रखे थे कि बागान खुलेगा उसका दूसरा दिन हम लोग को कोई ना कोई पेमेंट चाहिए, जैसे फोर्टनाइट पेमेंट, आपका ये बोनस, ऐसा कुछ नहीं किया। तो नेता लोग को सोचना चाहिए था कि जो बागान खुलेगा, अभी जो काम करेगा तो वो लोग को पैसा मिलेगा 15 ही यानी 1 महीना बाद, तो ये लोग खाएंगे क्या। कम से कम विचार विमर्श तो लेबर कमिश्नर को भी ये चीज़ सोचना चाहिए था, हम लोग का नेता लोग को भी सोचना चाहिए था। अगर हम लोग बैठते तो ऐसा एग्रीमेंट में हम लोग साइन नहीं करते। एक्चुअली ये बहुत ही गलत हुआ। अभी वही हम जनता हमारा बोल रहा है, लेबर लोग हमको कि हम लोग क्या खाएंगे। अभी बागान में काम करें हम 15 दिन तो हम लोग का मिलेगा पैसा 1 महीना में, हम लोग क्या खाएंगे। वही सवाल मुझसे कर रहा है हमारा लेबर लोग। तो अभी मैं क्या बोलूँ, वही अभी हम लोग का जो लेबर लोग बोला, औरत लोग हमको अभी बोला, तो इस विषय में हम आज ही मैनेजमेंट से बैठेंगे ऑफिस में कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग भी पहल कीजिए। सारा चीज़ खाली लेबर ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये नहीं होता है। आज जो हम लोग के ऊपर में जो ये बात सुनने को आ रहा है बहुत ही दुखित है।
आज देखिए बागान खुला, 4 महीना बंद था, लेकिन किसी का चेहरा में खुशी नहीं है। आप औरत लोग से जाके खुद पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। तो खुशी का माहौल जो होना चाहिए, एक्चुअली आज बागान खुल गया, बहुत खुशी होना चाहिए, लेकिन खुशी कोई नहीं है। দেখুন বাগানটা তো অনেক দিন থেকে বন্ধ ছিল, আর বন্ধকে আমরা সমর্থন করি না। আমরা সেন্ট্রালের যারাই আছি, আমি কিন্তু কখনো আমরা বন্ধকে আমি সমর্থন করিনি। এর আগেও যখন বোনাস মিটিং হলো, আমি ওদের বলেছিলাম যে দেখো বেশি ভালো হয় বোনাসটা একটা সিস্টেমে আসো, আলোচনার মাধ্যমে আসো। মালিক উইথড্র করে আসলো ওখান থেকে, কলকাতা থেকে বোনাসে মালিক উইথড্র করে নিল, ওদের মালিক দিতে পারবে না, মালিক আর্থিক অবস্থা খারাপ বলে ওইখান থেকে উইথড্র করে এসে এখানে আলোচনা বসলাম। আলোচনা বসার সাথে আমি সমিতি বললাম যে দেখো বাগান বন্ধ হয়ে যায়গা, যাদের এই যে সিজন হয় না, বনসের পরে একটা সিজন থাকে যে জানুয়ারি এই যে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্তই মালিকের সিজন থাকে। এই সময় আন্দোলন করলে মালিক চাই সবসময় বন্ধ করে চলে যায়, তো মালিকের টাকা বিশাল অঙ্ক টাকা বেঁচে যায়। তা সত্ত্বেও আমরা দুর্ভাগ্য আমাদের আমাদের তারাইতে কোনোদিন বাগান বন্ধ হয়নি। প্রথম বাগান যে বন্ধ হয়ে গেলো বনসের খেচালে, ডুয়ার্স অনেক বাগান বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমরা আজকে কালকে যে পরশু দিনের মিটিং হলো, মালিক বললো যে 4 কিস্তিতে বোনাস দেবো, আমরা মেনে নিলাম না। যে 4 কিস্তিতে আমরা বোনাস মানছি না, কারণ শ্রমিকের আমরা কিছু মালিক তো বলছে বোনাস পরে দেবো, কিন্তু বললাম না, খালি হাতে ঢোকা যাবে না বাগানে, শ্রমিককে তো কিছু দিতে হবে। তো ওই বলো ফোরনাইট পেমেন্ট একটা আছে আর বোনাস, এটা মিলে হোলির আগে পেমেন্টটা করা হবে, বাকি একটা পেমেন্ট থাকবে সেটা পরে 7% বোনাস করা হবে, বাকি 5% বোনাস ও হোলির পরে দেওয়া হবে। এইটাই হলো ডিসকাস আমাদের। না 1 মাস পেমেন্ট পাবে না, তো 15 পেমেন্ট আজকে দিয়ে যে 15 দিন কাজ করবে সেই পেমেন্টটা পাবে। আজকে আমি মালিককে রিকোয়েস্ট করেছি যে 15,000 যে বাকি আছে এই 2-4 দিন মধ্যে দিলে শ্রমিকরা কী খাবে, এটা রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনি এটা পেমেন্ট করে দিন। তো মালিক বলেছে যে আজকে আমার বোর্ড মিটিং আছে, আজকে আমরা ফাইনাল করে এই এতগুলো খরচা হচ্ছে, এইটুকু খরচা আমরা দিতে পারবো। এটাই হয়েছে মালিকের সাথে কথা বলা। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा। नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।